Hello kids of grade 5. I hope you people are doing well. I Tanya welcome you all in my EVS class. Kids, in the previous video I had started chapter 6 every drop counts. So let's continue the chapter. Earlier we had read about the step wells, how the people of earlier times used to carry water, used to bring water to their homes from these step wells. And I had given you some questions also to do related to this chapter. Today I'll discuss the answers first. First question is, have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? Its answer I have written, yours can be different. Yes, sometimes we face shortage of water in our area. This is due to the cut in supply of water by Jal Board. Then next is, talk to your grandmother or an elderly person, find out when they were of your age, from where did they get water for the house. वो लोग पानी कहाँ से लाते थे फॉर द हाउस. हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ, अब कोई चेंज है. दे यूज टू गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, बाउदीज, पोन्स, रिवर्स एंड हैंड पम्प्स. आई होप यू पीपल माइट नो ऑल दीज थिंग्स कि पहले के जो लोग थे तो वो वेल्स या फिर बाउदीज मीन स्टेप वेल्स या पोन्स वहाँ से पानी लाते थे, हैंड पम्प्स ऑल्सो. बट नाउ वी गेट वाटर सप्लाइड बाय जल बोर्ड और फ्रॉम ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स एक्सेट्रा. Next is, what kind of water arrangements were made for travelers? For example, payau, mashak means leather bag or any other. Now, what do people do about water when they travel? For travelers, there were arrangements of payau, etc. Nowadays, people usually purchase packaged drinking water. हमें अगर हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो वी गेट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जो आपको बिस्लेरी या कोई भी और बॉटल्स मिनरल वाटर की जो मिलती हैं, or carry their own water bottles. Our today's topic starts from here, customs related to water. Even today, people get water from very old lakes, dharas, stepwells and nalas. Many customs and festivals are related to water. Water से जुड़े बहुत सारे रीति रिवाज customs हैं. At some places, whenever lakes get filled up with rain water, the people gather around the lake to celebrate. अभी भी बहुत से ऐसे villages या बहुत से ऐसे areas हैं जहाँ पर जब rain water collect होता है तो लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं to celebrate. See the bride of उत्तराखंड in this picture. ये एक bride है, newly married है, ठीक है. ये उत्तराखंड से है. आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज. अब वो नए विलेज में आई है मैरिज के बाद. She bows to the spring or the pond. In cities, one can see an interesting form of this custom. तो वो पानी आ रहा है तो she is just preaching there. The new bride worships the tap water in her home. Can we even imagine life without water? Never. हम लोग अपनी life imagine कर ही नहीं सकते हैं without water. Do you have some special pots for water at your place? क्या आपके पास कुछ स्पेशल पोट्स हैं वाटर के लिए आपके प्लेस पर? लुक, वाटर इज़ बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटिफुल कॉपर पोट. वाटर को फिल किया गया है इस ब्यूटिफुल कॉपर पोट में. द शाइनिंग येलो पोट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर. मैनी स्टोन कार्विंग्स आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर? वेयर? बच्चे नेक्स्ट आर दीज क्वेश्चंस. फाइंड आउट दीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली. ये सिर्फ आपने अपनी बुक में लिखना है, नो नीड टू राइट इन नोटबुक. सम जनरल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड लाइक, इज देयर अ लेक, वेल और स्टेपवेल नियर योर हाउस? हाउ ओल्ड इज इट? व्हाट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट? दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. सो जस्ट फाइंड आउट कि आपकी बिल्डिंग के पास, आपके घर के पास या फिर आपके नियर बाय एरिया में इज देयर एनी लेक? अगर है तो राइट डाउन अबाउट इट. नेक्स्ट इज थिंक ओवर इट. इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज. 1986 में देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर. जोधपुर में कोई बारिश नहीं होती थी एंड द सराउंडिंग एरियाज, जो उसके आसपास के एरियाज थे वहाँ पर भी. पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेपवेल. They cleaned the stepwell and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. तो garbage जो उसमें भरा हुआ था लोगों ने उसे they just took that off. People of the area collected money. उन सब लोगों ने आपस में मनी कलेक्ट की
द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल. और जो लोग प्यासे थे, जो विलेज के लोग थे, उन्होंने उस स्टेप वेल से उनको वाटर मिला. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन. फिर कुछ साल बाद जब वहाँ पर बारिश हो गई, फिर से लोग स्टेप वेल को भूल गए और फिर से उसे गंदा करने लगे. Kids, you have to read this very carefully because in next video I am gonna ask or give you some questions to do related this. Discuss. There are two old wells in the area where Punita lives. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. जो wells थे उनमें water था 15-20 years ago. The wells could have dried up because. वो वेल्स ड्राई क्यों हो गए? रीड दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली बिकॉज इससे रिलेटेड यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन. वाटर इज बीइंग pumped up from under the ground with the help of electric motors. इलेक्ट्रिक मोटर्स की हेल्प से वाटर निकाला जाता था. द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर. तो लेक्स नहीं है वहाँ पर. द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट. और वो जो सॉइल है जो ट्रीज़ या पार्क्स के आसपास थी, अब उसको सीमेंट से कवर कर दिया गया है. इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस? एक्सप्लेन. नेक्स्ट इज द स्टोरी टुडे. डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दीज वेज? अब वी विल रीड अबाउट सम वेज थ्रू विच वी पीपल गेट वाटर. हेयर आर सम वेज. कुछ लोग टैंकर से पानी लेते हैं. इट हैपन्स मोस्टली इन स्मॉल एरियाज ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक बॉम्बे हो गया. वहाँ पे जो चौल में अगर रहते हैं लोग तो वहाँ पर ऐसा होता है. देन फ्रॉम द वेल्स. देन वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर. वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे. समटाइम इट इज़ डर्टी, सो यू हैव टू पुट अ टिक कि आप इनमें से कौन से वे से वाटर लेते हैं. देन नेक्स्ट इज़ कि आप वी गेट वाटर फ्रॉम आर टैप्स ऑल डे लॉन्ग. सारा दिन अपने टैप से ही पानी लेते हैं. देन वी हैव पुट अ पम्प डायरेक्टली ऑन जल बोर्ड पाइपलाइन, या फिर डायरेक्टली एक पंप है. और वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल. बोरवेल से आप पानी लेते हैं थ्रू अ मोटर. या फिर वी गेट वाटर फ्रॉम कैनाल. सीधा कैनाल से लेते हैं, या फिर देर इज़ अ हैंड पम्प नियर बाय. सो यू हैव टू पुट अ टिक in one of the ways through which you get water. Kids, this was all for today. Keep doing your work well on time. Goodbye everyone. We will meet in our next class.